Now welcome student. In continuation of the previous topic, we have to design a CFG for the given PDA. हमें PDA given है तो हमें उसे CFG बनाना होगा, तो उसके लिए हम थ्योरम 7.4 के LP मिश्रा की यूज कर रहे हैं. For theorem 7.4, we already know, we have given the theorem in previous lecture. Make a CFG G which accept NA stand for the automata, for the automata that is PDA, where A given as Q0 Q1, that is capital Q, sigma is Q A and B, inverted L that is Q0 Z, delta is same delta, Q0 is Q0, stack symbol Z0, and the final state is in the final state as given as the null store phi. Phi means null store, it is acceptance by empty stack. There are two types of acceptance: acceptance by final state, acceptance by final state, or by empty stack, that I have already explained. Now the delta is given as this form. I am not explaining because it will take much of the time, because this question is little bit lengthy. So delta is given as in the form of the rules. Q0B Z0 gives Q0 Z0, Q0 null Z0 gives Q0 null. So what we have to do for this type of question, we have to apply the rule of R1, R2, R3 very carefully, that I have already explained in this previous lecture. I am just giving you a glimpse of this. These are the rules which you have to apply. I have explained in the previous lecture. Now for CFG, G is equal to, फॉर मेकिंग हमें CFG बनानी है, उसके लिए ग्रामर गिवन है VN सिग्मा PNS, ये हमारे गिवन कंटेंट है. फॉर VN इज इक्वल टू S टेंड्स टू S यूनियन ब्रैकेट ओपन QZ Q डैश, वेयर Q belongs to capital Q dash belongs to capital Q, and Z belongs to stack symbol or the push down symbol. For here in this question we have Q is equal to Q0 Q1, Q dash is equal to Q0 Q1, and Z is equal to Q0 Z. Now we have to make some pairing. मैंने एक pairing पहले से कर रखी है. First is you have Q0 and then Z0 and then Q0 and then Q1 Z0 Q1. Similarly for other pairing we have to use, actually we have, for making this we have to use twice of this and twice of this. 2 times we have to use of this. Similarly we have to use twice of this and twice of this. How it is? That Q0 Z0 Q0, it is a one triplet. ऐसे ही हमारे इसके पेयर बनेंगे. नेक्स्ट Q0 Z0 Q1, Q0 Z0 Q1, अगेन Q1 Z0 Q0, Q1 Z0 Q0, again Q1 Z0 Q1, Q1 Z0 Q1. ऐसे ही हमने यहाँ बनाने हैं. दैट इज Q0 Z Q0, Q0 Z Q0, Q0 Z Q0, again Q0 Z Q1, Q0 Z Q1, again Q1 Z Q0, Q1 Z Q0, again Q1 Z Q1. तो टोटली 8 बनेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. कैसे बने फिर से देख लो. Q0 Z Q0, Q0 Z Q1, ये 2 हो गया. Q1 Z Q0 और Q1 Z Q1, ये 2 हो गया. तो इस तरह से हम एक बार इसको और 2 बार इसको, फिर एक बार इसको और 2 बार इसको, Q0 के साथ Q0 Q1 और Q1 के साथ Q0 Q1. तो टोटल 8 पेयर्स बनेंगे. बहुत इजी है ये, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. नाउ अगेन सो VN में हमारे पास क्या होगा? S होगा, दैट इज अ स्टार्ट सिंबल, और वो जो पिछले हमारे 8 हैं उसको हमने सम अप करके लिख लिया है. ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, वो हमने सारे इकट्ठे करके लिख लेने हैं. अब VN के बाद हमारा प्रोडक्शन रूल बनना है. प्रोडक्शन के लिए हमारा क्या होगा? फर्स्ट P1 वी यूज R1 हम यूज करेंगे. हम एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको.
व्हाट इज R1? R1 क्या कहता है, इसको दिमाग में फिर से रख लेंगे तीनों रूल। R1 कहता है S टेंड्स टू Q0 Z0 Q फॉर एवरी Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ये हमारा R1 का रूल है। तो R1 के रूल के हिसाब से S टेंड्स टू Q0 Z0 और Q बिलोंग्स टू Q0 Q1, ये हमें गिवन है। सो देयरफॉर Q0 Z0 Q0 और Q0 Z0 Q1, ये दो बन गए। ये सबसे आसान है बनाना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहीं से मैंने कॉपी किया है। डेल्टा ऑफ Q0 B Z0 इज इक्वल टू Q0 Z Z0। अब इस तरह के प्रोडक्शन में हमें कौन सा प्रोडक्शन रूल लगाना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये वो प्रोडक्शन है जो कि पुश डाउन सिंबल को इरेज नहीं कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ईच मूव नॉट इरेजिंग अ पुश डाउन सिंबल गिवन बाय डेल्टा ऑफ QA Z विच गिव्स Q1 Z2 ZQ1 Z1 Z2 लाइक दिस। ये जो कोई भी इस तरह का रूल जिसमें कि आपको ये सिंबल मिल जाए, ये ट्रिपल मिल जाए और Q1 के साथ Z1 Z2 Z3 लाइक दिस मिल जाए, तो वो क्या करेगा, वो कई सारे रूल बनाएगा। वो कैसे बनाएगा वो भी हम देखते हैं। इस रूल की पहचान क्या है? इस रूल की पहचान ये है कि Q0 B Z0 विल गिव्स Q0 Z Z0। वो सारे मूव जो कि पुश डाउन सिंबल को ना हटाएं, वो सारे मूव जिसमें कि पुश डाउन सिंबल के एलिमेंट ना हटे, तो हम R3 यूज कर लेंगे। बाय R3 में फिर से लिखा है Q Z Q डैश विल गिव A Q1 Z1 Q2 Z2 Q3। नाउ इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम LHS को लेते हैं। LHS के लिए देखिए, फॉर LHS वी हैव Q बिलोंग्स टू Q0, Z बिलोंग्स टू Z0, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन Q डैश बिलोंग्स टू Q0 Q1, ये भी हमें गिवन है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमारा कैसे गिवन है, ये यहां से देख लो आप, ये Q0, ठीक है, ये स्टेट है, ये इसका ये स्टैक, ये हमारा टर्मिनल है और ये हमारा स्टैक का सिंबल है। तो फॉर दिस LHS Q0 Z0 Q डैश बिलोंग्स टू Q0 Q1। अब हमें LHS में क्या करना है, इसको दो बार लेना है और इसको दो बार लेना है। कैसे लेना है ये देखो। हमें पहला जो पेयर बनेगा हमारा, फॉर LHS ऑफ रूल P3 इट इज Q0 Z0 Q0 Z0 Q0। अगेन फिर से इसे रिपीट करेंगे। इसको चाहो तो दो बार लिख सकते हो आप। फिर से Q0 Z0 Q0, ये हमारा रूल है। इस रूल को हमें बस दिमाग में रखना है, ठीक है। ये हमारा रूल का ये लॉजिक है कि हमारा जो भी Q है उसको हम 2 टाइम लेंगे, ठीक है। तो Q0 Z0 Q0 Q0 Z0 Q0, अगेन फिर Q0 Q0 Z0 Q1 Q0 Z0 Q1। तो टोटली ये 4 बनेंगे। ये हमारा LHS हो गया। अब RHS के लिए फिर से हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। नाउ कम टू द RHS पार्ट के लिए हमें अपना रूल को दिमाग में रखना है। रूल हमारा क्या कहता है वो देखो आप। फॉर रूल Q डैश विल गिव ए टर्मिनल एंड a combination of state Q1 Z1 Q2 Z2 Q3। इसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लो, क्योंकि इसी के बेस पे हम अपने बाकी के प्रोडक्शन रूल बनाएंगे। नाउ सी, डेल्टा ऑफ Q0 B Z0 विल गिव Q0 Z0, ये हमें गिवन है, दोबारा मैंने लिख लिया। अब हम इसके RHS की बात कर रहे हैं। हमने LHS के लिए, इस LHS के लिए हमने वो 4 रूल आपको दिखा दिए थे, दैट इज P3 to P6 मैंने ये बना दिए थे। ये आप एक बार देख लो, ये P3 से P6 हो गए थे। अब P3 से P6 के RHS पार्ट के लिए हम ले रहे हैं, तो फिर से देखते हैं। नाउ अगेन फॉर RHS पार्ट, फॉर A इज नथिंग बट टर्मिनल। ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये देखो। A व्हाट इज A? फॉर दिस A देयर इज अ टर्मिनल। ये टर्मिनल हो गया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ Q1 को हम 2 बार पेयर करेंगे, दैट इज Q0 Z1 के लिए हमारे पास है Z। ये कहां से ले रहा हूं, जो गिवन है क्वेश्चन में। Z1 के लिए Z
नाउ Q2 के लिए मेरे पास होगा दोनों, दो बार स्टेट लेंगे हम दोनों, दैट इज Q0 Q1, और Z2 के लिए लेंगे हम Z0, दैट इज Z0, और Q3 के लिए हम लेंगे Q0 Q1। ये भी हम दो बार लेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला छोटा सा बनाया है। Q3 में Q0 दो बार आएगा और Q3 में Q1 दो बार आएगा। ये कैसे आएगा ये अभी देखते हैं हम। P3 में देखिए Q0 Z0 Q0, ये पिछले वाले रूल से मैंने लिख लिया दोबारा से। Q0 Z0 इज इक्वल टू A Q1 Z1 Q2 Z2 Q3, दैट इज Q0 Z Q0 Q1 Z1 Q2 Q1 Z1 Q2, फिर से Q2 दोबारा से है ना, तो Q2 Z2 एंड देन Q3, दैट इज Q0। फिर से देखो इसे एक बार, P3 में मैंने क्या करना है, Q0 Z Q0 Q0, ये एक स्टेप, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट है P4 के लिए Q0 Z Q1, अब नीचे आ गए हम, ठीक है, Q0 Z Q1। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है Q1, वो सेम ही है क्योंकि वो Q2 का एलिमेंट Q1 Z0 Q0, मीन्स ये जो Q0 है ये दो बार हो गया, और ये जो Q0 Q1 है ये भी दो बार रिपीट हो गया, और Q0 है ये हमारा ये दो बार आया। अब फिर से चलेंगे हम Q1 के लिए दो बार रिपीट करेंगे हम। ये देखो Q1 के लिए दैट इज P5 के लिए B Q1 दैट इज Q0 Q1 Z1 Q1 Z1 Q2 Z2 और Q3 में हो गया Q1, दैट इज Q0 Z Q0 Z0 Q1 Q0 Z Q0 Z Q1। फिर से देखो अगेन Q0 Z Q1, अब Q0 ले लिया था तो फिर Q1 लेना है एक बार में, फिर नेक्स्ट Q1, फिर Z0 एंड देन नेक्स्ट Q1। सो ये देखो ये भी हमारा दो बार आ गया, ये दो बार आ गया, ये दो बार आ गया, और ये दो बार आ गया, ये दो बार आ गया। इस तरह से हमारे रूल ये कंप्लीट हो जाएंगे। यही साइकिल हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी हर बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये साइकिल एक बार फिर समझ लीजिए, Q1 के साथ में आएगा Q0, फिर Z, फिर Q0, फिर ये Z0, फिर Q0, ये आएगा दो बार। देन अगेन Q0 Z Q2 Z0 एंड देन Q0 अगेन, फिर Q1 की बारी, जब ये दो बार आ जाएगा इसके बाद ये दो बार आ जाएगा, ठीक है, दैट इज Q0 Z1 नेक्स्ट Q2 इज Q0 अगेन, यहां पे भी Q2 इज Q0 अगेन, Z2 that is Q0 and then Q3 that is Q1। so this repeat, और इस तरह से हमारा फिर इस तरह से बाकी भी बनेंगे। अब ये कौन सा है, ये नया रूल आया है इसी क्वेश्चन में। नाउ डेल्टा ऑफ Q0 नल Z0 इज इक्वल टू Q0 नल, दिस गिव्स व्हाट, ये हमारा बाय रूल 7 है कि अगर हमारे पास कोई टर्मिनल आएगा या नल आएगा तो हम रूल 2 लगाएंगे। रूल 2 कहता है Q0 Z0 Q0 विल गिव्स ए टर्मिनल, ये हमारा रूल 2 कहता है। रूल 2 को एक बार फिर से देख लेना आप पिछले वाले लेक्चर में। अब नेक्स्ट फिर से चलेंगे हम आगे। नाउ
नाउ सिमिलरली Q0BZ इज इक्वल टू Q0ZZ। ये फिर से हमारा ये R2 वाला क्वेश्चन आ गया। अब R2 के लिए फिर से हमें LHS और RHS पार्ट में दोनों में डिवाइड करना है बाय R3 QZ Q' B Q1 Z1 Q2 Z2 Q3। ये हमारा रूल है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इसको हमें क्लियर रखना है माइंड में अपने। ठीक है, अब अगेन फिर से कंपेयर कर लिया फॉर LHS के लिए Q बिकम Q0, इसको चाहो दो बार लिख लो, Z बिकम Z बिकम Z, Q डैश बिकल टू Q0 Q1, और ये हो गया Q0 Q1। नाउ अगेन फिर से, और यहीं पे शॉर्टली समझा दे रहा हूं RHS के लिए। RHS के लिए ये हमारे पास है Q0, ठीक है, और नेक्स्ट Q2 में Q0 और Q1, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, Q0 के साथ में, एक बार Q1 के साथ में। फिर नेक्स्ट Q3 में Q0 दो बार आएगा, ठीक है, ये दो बार आएगा जैसे अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन करेंगे। तो उस तरह से हमारे फिर से ये रूल हमारे फिर से बन जाएंगे। ये चार रूल वैसे बन गए LHS के, और RHS के वैसे रूल फिर से वही रिपीट करके, दैट इज अगेन ये हो गया A Q1 Z1 Q2 will give Q2 Z2 Q3, that is B Q0 Z Q0 will give Q0 Z Q0। अब Q0 के फिर से दो आ गए, ये देखो Q0 Q1 यहाँ दो बार आ गया, Q0 Q1 यहाँ पे भी दो बार आ गया। फिर नीचे देख लो, फिर नीचे वाले में भी दो ही बनेंगे ना, तो ये Q1 के दो बन गए, Q0 Q1 के दो बन गए, फिर से Q0 Q1 के दो बन गए, ठीक है, और Q0 तो कॉमन है ही है। अब इसके बाद एक और रूल देख लो, एक और इसमें प्रोडक्शन आता है, डेल्टा ऑफ Q0AZ विल गिव Q1Z। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही बार इसमें इस क्वेश्चन में ये इसकी ट्रिक है, या जैसे याद रखो इसे, इसमें एक ही बार आपको लिखना है, दैट इज Q0Z Q0 विल गिव्स Q1Z Q0, and then Q0Z Q1, that is A Q1 Z Q1। ये इसमें आपको ये एक ही बार लिखनी है। नाउ अगेन फिर से एक रूल आ रहा है, डेल्टा ऑफ QBZ इज इक्वल टू Q1 नल, दिस गिव्स Q1Z Q1 टर्मिनल। अगेन नाउ Q1AZ इज इक्वल टू Q0 Z0, तो फिर से इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है, दैट इज Q0 Q1 एंड देन Q0 Q1, एक ही बार रखना है, इसकी ये ट्रिक है। सो देयरफॉर दिस गिव्स अस NA इज इक्वल टू LG। बस इतना ही प्रूव करना है, ये लेंथी क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और कर लीजिएगा, उसके बाद अपने डाउट रेज करिएगा। ओके।